Good morning, Nanne Farishto. So, today we are going to do reading, explanation, and solutions of the chapter Badal and Moti from the English textbook for class 3, which is Santur, issued by NCERT CBSE. Let's begin. Chapter 2 Badal and Moti. Let us read. There was a boy called Badal. He lived with his mother in a village and they were very happy. One evening, when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. Badal brought him home. Can this puppy stay with us, Ma? Asked Badal. Yes, beta, but only if you promise to take care of the puppy, said his mother with a smile. Badal and his mother named the puppy Moti. As days went by, Badal grew up and loved Moti grew up and loved Badal. They became best friends. They ate and played together. Moti followed Badal wherever he went. They played their favorite games together. One rainy day, while Badal was on his way home from school, he slipped on the muddy lane and fell into a deep pit. He tried hard but could not come out of the pit. Badal's mother was worried when he did not come home in time. Moti, too, was waiting at the gate. Badal's mother gathered the neighbors to help search for him. Moti, too, accompanied them. Moti caught Badal's scent. He followed the scent and went near the pit and started barking. This alerted the neighbors who were searching for Badal. They used a rope to pull Badal out of the pit. Everyone was relieved. Badal hugged and thanked Moti. चलो अब इस कहानी को हिंदी में समझते हैं. There was a boy called Badal. एक बच्चा था, उसका नाम था बादल. He lived with his mother in a village and they were very happy. वो अपनी मम्मा के साथ एक गांव में रहता था और वो दोनों बहुत खुश थे. One evening, एक दिन शाम को, when बादल was returning from school, जब बादल स्कूल से रिटर्न आ रहा था घर, मतलब जब बादल स्कूल से घर वापस आ रहा था, he saw a puppy shivering in the cold. उसने देखा कि एक पपी था, डॉग का बेबी, और वो ठंड से कांप रहा था. बादल brought him home. बादल उसे घर लेकर आ गया. Can this puppy stay with us, माँ? asked बादल. उसने मम्मा से पूछा, मम्मा, क्या ये पपी हमारे साथ घर में रह सकता है? Yes, beta, but only if you promise to take care of the puppy, said his mother with a smile. तो उसकी मम्मा ने स्माइल करते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटे, ये पपी हमारे साथ रह सकता है, लेकिन सिर्फ तभी अगर तुम प्रॉमिस करो कि आप इसको केयर करोगे, इसका ध्यान रखोगे. बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती. बादल और उसकी मम्मा ने उस पपी का नाम रखा मोती. As days went by, Moti grew up and loved बादल. जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोती बड़ा हो गया और वो बादल को बहुत प्यार करता था. They became best friends. वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छे दोस्त बन गए. They ate and played together. वो एक साथ खाना खाते थे और खेलते थे. एक साथ खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि दोनों एक प्लेट से खाते थे, जूठा खाते थे एक दूसरे का. मतलब वो एक ही टाइम पर दोनों बैठकर खाना खाते थे और इकट्ठे इकट्ठे खेलते थे. मोती फॉलोड बादल wherever he went. जहां जहां बादल जाता था, मोती उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करता था, उसके पीछे पीछे जाता था. They played their favorite games together.
उनके जो भी फेवरेट गेम्स थे वो उसको मिलकर खेलते थे। One rainy day, while Badal was on his way home from school, he slipped on the muddy lane and fell into a deep pit. एक दिन बरसात का दिन था, बारिश हो रही थी। While Badal was on his way home from school, बादल स्कूल से घर वापस आ रहा था। He slipped on the muddy lane. वो कीचड़ वाला रास्ता था ना, जब बारिश होती है तो मिट्टी पे कीचड़ बन जाता है ना बेटे मिट्टी से, तो उसमें वो स्लिप कर गया, फिसल गया उसका पाँव एंड फेल इनटू अ डीप पिट, और बहुत गहरे गड्ढे में वो गिर गया बेचारा। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन वो पिट से बाहर, गड्ढे से बाहर नहीं आ पाया। Badal's mother was worried when he did not come home in time. जब वो टाइम पर घर वापस नहीं आया तो बादल की मम्मा को फिक्र हुई। मोती too was waiting at the gate. मोती भी अपने घर के गेट पे वेट कर रहा था कि बादल कब आएगा और वो खेलेंगे। Badal's mother gathered the neighbors to help search for him. बादल की मम्मा ने कुछ नेबर्स को, कुछ पड़ोसियों को गैदर किया, इकट्ठा किया, और वो सब मिलकर बादल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। मोती too accompanied them. मोती भी उनके साथ चल पड़ा। Moti caught Badal's scent. He followed the scent and went near the pit and started barking. मोती caught Badal's scent. तो मोती को बादल की जो सेंट थी, उसके शरीर की जो सुगंध थी, वो मोती ने पहचान ली, उसको कैच कर लिया, उसको स्मेल को मोती ने पकड़ लिया, और वो फटाफट वहां तक पहुंच गया गड्ढे में जहां पर बादल गिरा हुआ था, और उसने जोर जोर से बार्क करना शुरू कर दिया, भौंकना शुरू कर दिया। आपको मालूम है ना बेटे, डॉग्स की जो है सुपर सेंस होती है स्मेल की और हियरिंग की, है ना, वो बहुत दूर से पहचान लेते हैं स्मेल को, और वो सुन भी लेते हैं। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग। तो जो पड़ोसी थे, नेबर्स थे, सब बादल को जगह जगह ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने मोती की आवाज सुनी तो वो अलर्ट हो गए कि कुछ तो मिला है मोती को। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट। उन्होंने एक रस्सी को यूज किया और बादल को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। एवरीवन वाज रिलीव्ड। सब लोगों ने चैन की सांस ली कि चलो बादल सकुशल है। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती। बादल ने मोती को प्यार किया और उसको थैंक्स बोला। तो जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी मदद जरूर मिलती है। क्वेश्चन 1, What did Badal come across by the side of the road? What did Badal come across by the side of the road? बादल को रोड के साइड में क्या मिला था? Badal came across a puppy shivering in the cold. Badal came across a puppy shivering in the cold. बादल को ठंड में कांपता हुआ एक पपी मिला। Question 2, What did Badal and his mother name the puppy? बादल और उसकी मम्मा ने पपी का नेम क्या रखा था? Very good. Badal and his mother named the puppy Moti. बादल और उसकी मम्मा ने पपी का नाम रखा मोती। ये देखो बच्चे, क्वेश्चन में कम है ना, तो आंसर में केम आया है। क्वेश्चन में नेम है, आंसर में नेम्ड आया है ना। कौन मिला था? एक पपी मिला था। क्या नाम रखा? मोती नाम रखा। What did बादल fall into? बादल किस में गिर गया? बादल fell into a deep pit. बादल एक गहरे गड्ढे में गिर गया। क्वेश्चन में fall है, आंसर में fell, fall का past. How did मोती find बादल? मोती को बादल कैसे मिला? मोती followed बादल scent and found him. मोती ने फॉलो किया, पीछा किया बादल की सेंट का, बादल के शरीर की खुशबू का, एंड फाउंड हिम। फाइंड का क्वेश्चन में फाइंड है, आंसर में फाउंड, एंड फाउंड हिम। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो सही बातें हैं बेटे, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं,
इनमें से जो स्टेटमेंट सही हैं, जो बातें सही हैं, वहाँ पे हमने लिखना है टी मतलब ट्रू, ट्रू मतलब सही, और जो गलत है वहाँ पे लिखना है एफ मतलब फॉल्स मतलब गलत। ये देखो बच्चे टू बलून्स लिए हुए ना, टी आएगा कि एफ आएगा, आपको बताना है। फर्स्ट, बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर। बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर। बताओ टी आएगा कि एफ, ट्रू की फॉल्स? बादल ग्रैंडमदर के साथ रहता था? नो, बादल तो मम्मा के साथ रहता था, मदर के साथ। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, एफ। सेकेंड, मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती बड़ा हो गया और वो बादल को बहुत प्यार करता था। दिस इज ट्रू, सही बात है। Badal's mother was worried when he did not come home in time. Badal's mother was worried. बादल की मम्मा worried हो गई थी, घबरा गई थी। When he did not come home in time. जब वो घर वापस टाइम पर नहीं आया तो बादल की मम्मा को फिक्र हो गई थी। ये क्या है स्टेटमेंट? ट्रू, सही बात है। मोती caught Badal's photo. मोती caught Badal's photo. मोती ने बादल की फोटो देखकर पहचाना था क्या वो कहाँ पर है? नहीं, उसने तो सेंट को फॉलो किया था। फॉल्स। बादल hugged his puppy Moti and thanked him. बादल hugged his puppy Moti and thanked him. बादल ने अपने पपी मोती को हग किया, उसको प्यार किया और उसको थैंक यू बोला। ट्रू। थिंक एंड डिस्कस इन पेयर्स। तो आप आपस में फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस करो। फर्स्ट, डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम? हाउ डिड यू फॉल? हु पिक्ड यू अप? शेयर योर एक्सपीरियंसेस। डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम? आपको याद है पिछली बार कब गिर गए थे? हाउ डिड यू फॉल? आप कैसे गिरे थे? हु पिक्ड यू अप? आपको किसने उठाया था? शेयर योर एक्सपीरियंसेस। ये बात अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो और क्लास में भी बताओ। सेकेंड, डू यू हैव अ पेट? डू यू नो समवन हु हैज अ पेट? क्या आपके पास कोई पेट एनिमल है? कुछ भी, गाय, बकरी, डॉग, कैट, कुछ भी आपने पेट एनिमल रखा हुआ है? अगर हाँ, तो या फिर आप किसी ऐसे अपने फ्रेंड को जानते हो जिनके घर में कोई पेट है? थर्ड, if you were allowed to keep any animal as a pet, which animal would you choose? Why? If you were allowed to keep any animal as a pet, अगर आपको मम्मा बोले कि ठीक है बेटे आप जिस एनिमल को चाहे पेट लेकर आ सकते हो घर में, तो आप कौन सा एनिमल चूज करोगे? क्यों? कौन सा जानवर आप घर लेके आना चाहोगे, पेट एनिमल के रूप में पालना चाहोगे और क्यों? ये आपस में बातचीत करो और क्लास में भी बताओ। Look at the following words from the lesson. अब लेसन के से कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। lived रहता था, loved प्यार करता था, shared शेयर करता था, मिलकर सब कुछ काम करते थे, gathered इकट्ठा किया, thanked थैंक यू बोला, lived रहता था, loved प्यार करता था, shared शेयर करता था, gathered इकट्ठा किया, थैंक्ड थैंक यू बोला। ये सब लेसन में आया था ना बेटा। अब क्या यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ed लगाया हुआ है। नोटिस दैट ऑल दीज वर्ड्स एंड विद ed। ऑल दीज एक्शंस हैव ऑलरेडी हैपेंड। ये सब हो गया है, एक्शन, ये काम हो गया है, इसलिए इनके साथ लगा है ed, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इनके साथ भी ed लगाकर इसको पूरा करना है। एड ed एंड राइट। सबसे पहले वॉक, वॉक मतलब चलना, वॉक करना, और वॉक कर लिया तो वो एक्शन हो गया, तो उसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? वॉक्ड। वॉक के साथ ed लग गया तो वॉक्ड। ऐसे ही प्ले, प्ले के साथ ed लग जाएगा तो प्लेड। टॉक मतलब बात करना, टॉक के साथ ed लग जाएगा तो टॉक्ड। आस्क के साथ लग जाएगा तो आस्क्ड।
पूछा। टच के साथ लग जाएगा तो टच्ड। फिर से पढ़ेंगे, वॉक वॉक्ड, प्ले प्लेड, टॉक टॉक्ड, ask asked, touch touched. Practice. Match the words to make pairs. Color each pair with the same color. Two have been done for you. तो यहाँ पर क्या करना है बच्चे, आपने मैच करना है। तो जिस कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम सेम कलर से दोनों को करना है। जैसे पेपर और पेंसिल, दोनों येलो येलो कलर से है ना, पेपर पे हम पेंसिल से लिखते हैं तो ये पेयर बन गया। तो सेम कलर से दोनों पेयर को करना है, पेपर एंड पेंसिल। पहले रीडिंग कर लेते हैं। पेपर, चेयर, बैट, नीडल, लॉक, इडली, बॉल, थ्रेड, की, पेंसिल, सांभर, टेबल। अब हमने इसको मैच करना है, लेकिन लाइन नहीं खींचनी है, बस सेम कलर कर देना है। जैसे पेपर येलो है तो पेपर एंड पेंसिल दोनों सेम कलर में येलो। चेयर, चेयर के साथ क्या आएगा बच्चों? बॉल आएगी, थ्रेड आएगा, की आएगा, सांबर आएगा कि टेबल? वेरी गुड, टेबल। दोनों ब्लू ब्लू कलर से हैं, चेयर एंड टेबल। फिर है बैट, बैट के साथ क्या आएगा? बॉल। दोनों पिंक कलर से कर दिए, कोई भी कलर कर लो। फिर नीडल, नीडल के साथ, सुई के साथ धागा, नीडल, थ्रेड, दोनों ग्रीन ग्रीन। लॉक के साथ की, ताला और चाबी, पर्पल पर्पल कलर कर दिया, कोई भी सेम कलर करना है मैच करने के लिए। इडली एंड सांबर। ठीक है। Your teacher will read out the story of Badal and Moti once again to you. Now read the following sentences and number them in the sequence of the story. अब जो बादल एंड मोती हमने स्टोरी पढ़ी है ना बेटे, उसमें जो भी हुआ था उसको आगे पीछे लिख दिया, सीक्वेंस चेंज कर दिया है। तो आपने बताना है पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, है ना। The first sentence has already been marked for you. सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। पहले ये सारे सेंटेंस पढ़ लें। One rainy day he slipped and fell into a deep pit. एक दिन बरसात का दिन था और वो एक गड्ढे में फिसल कर गिर गया। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल और उसकी मम्मा ने पपी का नाम रखा मोती। बादल हग्ड मोती। बादल ने मोती को प्यार किया, हक किया। बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को रोड के साइड में एक पपी दिखा। आपने ध्यान से सुनना है क्या, कौन कौन से सेंटेंस दिए हुए हैं, पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया। मोती accompanied बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। मोती ने बादल की मम्मा को अकंपनी किया, बादल को ढूंढने के लिए। अकंपनी करने का मतलब होता है उनके साथ जाना। जब बादल की मम्मा लोगों के साथ बादल को ढूंढने जा रही थी तो मोती भी उनके साथ साथ चला। मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। मोती ने बादल की सेंट को फॉलो किया, उसकी स्मेल को फॉलो किया और पिट के पास जाकर, गड्ढे के पास जाकर बार्क करना, भौंकना शुरू कर दिया। तो इन सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या आया बच्चों? बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को रोड के साइड में एक पपी दिखा। फिर क्या आया? वेरी गुड, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। उन्होंने पपी का नाम रखा मोती। उसके बाद क्या हुआ? यस, वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट। एक दिन बरसात के दिन, एक बार बरसात का दिन था और वो स्लिप होकर एक डीप पिट में गिर गया। उसके बाद मोती accompanied बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। मोती बादल की मम्मा के साथ उसको ढूंढने के लिए साथ में गया। फिर मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। मोती बादल की सेंट को फॉलो करता हुआ उसकी स्मेल का पीछा करते करते पिट के पास पहुंच गया और बार्क करने लग गया। फिर उसको निकाल लिया गया। फिर क्या हुआ? बादल हग्ड मोती। बादल ने मोती को प्यार किया। थैंक यू मेरे दोस्त। Before you come to school,
Every day I get up at 5 o'clock in the morning. Then I brush my teeth and go to the washroom. After that, I take a bath and dress up for school. I eat breakfast and go to school. यही होते हैं ना स्कूल आने से पहले. एवरी डे आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. हर रोज मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ. देन आई ब्रश माई टीथ एंड गो टू द वॉशरूम. उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, नहाता हूँ. आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल. फिर मैं नहाता हूँ और स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ. आई ईट ब्रेकफास्ट. मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ एंड गो टू स्कूल और स्कूल जाता हूँ. ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, स्कूल जब चल रहा होता है फिर मैं क्या करता हूँ. एवरी डे आई अटेंड मॉर्निंग असेंबली इन द स्कूल. सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है ना, जब आप लोग इकट्ठे होते हो और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, भगवान जी का नाम लेते हो. एवरी डे आई अटेंड मॉर्निंग असेंबली इन द स्कूल. देन आई स्टडी, प्ले, सिंग, डांस, ड्रॉ एटसेट्रा. उसके बाद क्या होता है, मॉर्निंग असेंबली के बाद मैं पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, गाना गाता हूँ, डांस करता हूँ, ड्राइंग करता हूँ एटसेट्रा. और भी स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होती हैं सब करता हूँ. आफ्टर गोइंग बैक होम, घर जाकर क्या करता हूँ. आफ्टर गोइंग बैक होम आई चेंज माई ड्रेस, हैव लंच एंड चैट विद माई फैमिली. देन आई रेस्ट फॉर सम टाइम, do my homework and go to play. After that, I have my dinner and go to sleep. After going back home, घर वापस जाकर मैं क्या करता हूँ. After going back home, I change my dress. मैं अपनी ड्रेस चेंज करता हूँ. Have lunch, लंच खाता हूँ. And chat with my family, और अपनी फैमिली के साथ बातें करता हूँ. Then I rest for some time. फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ. Do my homework, अपना होमवर्क करता हूँ. And go to play, और फिर शाम को खेलने जाता हूँ. After that, उसके बाद I have my dinner and go to sleep. फिर मैं अपना डिनर खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ. Look at the pictures. They show a story of two friends, a pigeon and an ant. But the pictures are jumbled up. Number them to get the correct order to make a story. इन पिक्चर्स को देखो. दे शो अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, अ पिजन एंड एन एंट. ये 6 पिक्चर्स दी हुई हैं बेटे. इसमें एक स्टोरी दिखाई हुई है कबूतर और चींटी वाली. याद है ना आपको, एक कबूतर बैठा होता है, वो देखते हैं स्ट्रीम में एक चींटी गिर गिर जाती है तो वो उसको पत्ता ऑफर करता है. चींटी पत्ते पे चढ़ जाती है और वो बच जाती है. फिर एक दिन चींटी देखती है एक शिकारी कबूतर का निशाना लगा रहा है, तो चींटी उसकी बाजू पे काट देती है और शिकारी का निशाना चूक जाता है और इस तरह से कबूतर बच जाता है ना. मॉरल ऑफ द स्टोरी की जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हमारी भी हेल्प ज़रूर हमें मिलती है. सो ये जो स्टोरी है ना, इसकी पिक्चर्स को जंबल अप किया हुआ है, मतलब आगे पीछे सीक्वेंस में दिया हुआ है. तो आपको बताना है कौन सी पिक्चर पहले आएगी. सो देखो यहाँ पे कबूतर चींटी को लीफ दे रहा है. इसमें द एंट इज हैज क्लाइम्ड ऑन द लीफ. एंट पत्ते पे चढ़ गई है. यहाँ पे जो है हंटर का निशाना चूक गया. यहाँ पे द पिजन इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. पिजन पेड़ की टहनी पे बैठा हुआ है. यहाँ पे द एंट इज ड्राउनिंग. एंट डूब रही है और वो हेल्प के लिए मदद मांग रही है. और यहाँ पे कबूतर इज थैंकिंग द एंट. तो इनको सीक्वेंस पे लगा देते हैं. सबसे पहले क्या हुआ था. यस, अ पिजन वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. एन एंट वाज ड्राउनिंग इन द स्ट्रीम. एक एंट पानी की धारा में बह रही थी और कह रही थी हेल्प हेल्प. तो कबूतर ने एंट को पत्ता दिया. एंट पत्ते पर चढ़ गई, क्लाइंब कर गई. और ये देखो यहाँ पर शिकारी निशाना लगा रहे हैं ना, ये देखो बाजू में उसको चींटी काट रही है और कबूतर एंट को थैंक्स कह रहा है ना. अब इसी को हम लोग नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी. सो यहाँ पे येलो कलर से कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको यूज करके आप नीचे फिलअप करने हैं और स्टोरी को पूरा करना है. लीफ पत्ती, फ्लू उड़ गया, ब्रांच पेड़ की टहनी, क्लाइम्ड चढ़ गया, फेल गिर गया,
stream, पानी की धारा, hunter, शिकारी. Now let us fill in the blanks. A dove was resting on a dash of a tree near a dash. A dove was resting on a dash of a tree. Dove कहाँ रेस्ट कर रहा था? पेड़ की ब्रांच पर. डव पेड़ की टहनी पे रेस्ट कर रहा था. और वो ब्रांच कहाँ पे थी? ट्री कहाँ पे था? नियर अ स्ट्रीम. एक पानी की धारा के पास वो पेड़ था. An ant dash into the stream. एक चींटी स्ट्रीम में गिर गई. Fell into the stream and cried for help. और help help मदद के लिए चिल्लाने लगी. The dove dropped a dash into the stream. Dove ने पानी में एक डैश गिरा दिया. क्या गिरा दिया? Leaf गिरा दी. Excellent. The dove dropped a leaf into the stream. The ant dashed on the leaf and landed safely. Ant leaf पर चढ़ गई. Climbed on the leaf and landed safely. और जमीन पे सुरक्षित पहुंच गई. Another day, the ant saw a dash aiming at the dove. एक अलग और दिन की बात है. कुछ दिनों के बाद एंट ने क्या देखा? एक हंटर, एक शिकारी डव पे एम लगा रहा था, निशाना लगा रहा था. She quickly climbed up and bit the hunter's hand. वो जल्दी से quickly climb up की, चढ़ गई हंटर की बॉडी में और उसके हैंड पे क्या कर दिया? बाइट कर दिया. Bit the hunter's hand. बाइट का पास्ट है bit. The dove flew away unhurt. और जो डव है बिना हर्ट हुए, बिना नुकसान पहुंचे उसको कुछ भी, वो उड़ गया. ठीक है. सी पार्ट. Look at these sentences from the lesson. नीचे कुछ sentences दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं पाठ से, उन्हें ध्यान से देखो बेटा. Can this puppy stay with us, माँ? माँ, क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है? तो ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो कौन सा निशान लगा उसके लिए? क्वेश्चन मार्क. ये देखो, है ना, क्वेश्चन का निशान लगा हुआ है. यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी. हाँ जी बेटे, वो हमारे साथ रह सकता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि आप उस पपी का ध्यान रखोगे. तो पहले वाले क्वेश्चन सेंटेंस में हमने देखा, उसने सवाल पूछा था, मम्मा हमारे साथ रह सकता है? तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना. और दूसरे वाले सेंटेंस में मम्मा ने एक नॉर्मल आंसर दिया कि हाँ जी बेटे रह सकते हैं, कोई सवाल नहीं है यहाँ पे. तो वहां पे क्या लगा है? फुल स्टॉप. सो यहाँ पे क्या करना है? देखो, एलिफेंट पे बेबी चढ़ा हुआ, ये कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप. बताओ दोनों में से क्या आएगा? ये वाला गेम है, तो आपको बताना है क्या आएगा. ठीक है. फर्स्ट है द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज पूर्व से निकलता है. अभी तो नॉर्मल बात हुई ना. क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा बताओ? फुल स्टॉप. एक्सीलेंट. सेकेंड, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? अब ये तो क्वेश्चन है ना, तो कौन सा निशान आएगा? क्वेश्चन मार्क. थर्ड, आई लाइक टू ईट मैंगोज. मुझे मैंगोज खाने बहुत अच्छे लगते हैं. तो एक आम बात है, कोई सवाल नहीं है इसके अंदर. तो क्या आएगा? फुल स्टॉप. फोर्थ, मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. बोरो होता है कुछ समय के लिए किसी का सामान लेना, उधार लेना. मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. क्या मैं कुछ देर के लिए आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक ले सकता हूँ? तो क्या आएगा? ये क्वेश्चन पूछा है ना, इसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है. तो क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क. फिफ्थ, Brinda and Namrata are good friends. Brinda और नम्रता अच्छे दोस्त हैं. सो ये सवाल तो नहीं है, तो ये फुल स्टॉप. Whose shoes are these? ये किसके शूज हैं? तो ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछे किसके शूज है, तो कौन सा निशान आएगा? क्वेश्चन मार्क. एक्सीलेंट. कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन. सो नीचे दो बच्चे हैं, उनकी आपस में कुछ बातचीत हो रही है. तो चलो, उनके कुछ डायलॉग्स मिसिंग है, उसे हम कंप्लीट कर देते हैं. नमस्ते, आई एम आनंदी. व्हाट इज योर नेम? नमस्ते, मेरा नाम आनंदी है, आपका नाम क्या है? तो वो बच्चा क्या बोलेगा? नमस्ते, आई एम सोनू. मेरा नाम सोनू है. आप कुछ भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे.
I live in dash. Where do you dash? मैं डैश में रहती हूँ, कोई भी जगह का नाम लिख सकती हूँ. I live in Delhi. Where do you live? आप कहाँ रहते हो? I live in पंचकुला. मैं पंचकुला में रहता हूँ. I go to ABC school. मैं ABC स्कूल में जाती हूँ. आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो, अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो. Yes, I study in that school too. अरे मैं भी तो उसी स्कूल में पढ़ता हूँ. That's great. In which class are you in? ये तो बहुत अच्छी बात है. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? I am in class third. मैं थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ. Which class are you in? आप किस क्लास में पढ़ते हो? I am in class third too. मैं भी क्लास थर्ड में पढ़ती हूँ. Nice meeting you. See you in school tomorrow. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. कल हम आपसे फिर मिलेंगे स्कूल में. Let us do. Look at the picture below. It shows three children playing. Would you like to add anything to this picture? Use your crayons or color pencils to add to the picture. So यहाँ पे नीचे कुछ एक पिक्चर दी हुई है और यहाँ पे आप देख रहे हो 3 बच्चे खेल रहे हैं. थोड़ी पिक्चर खाली खाली लग रही है ना. देखो ये सारा स्पेस खाली लग रहा है, ये भी स्पेस खाली लग रहा है. तो आप इसमें अपने क्रेयॉन्स को या फिर अपनी कलर पेंसिल्स को यूज करके पूरा इस ड्राइंग को कंप्लीट कर दो. अपनी इमेजिनेशन को यूज करो. आपको देखो क्रेयॉन्स और कलर पेंसिल यूज करनी चाहिए. आपको भी स्केच कलर्स बेटे इस स्टेज में अभी यूज नहीं करने चाहिए, है ना. तो कंप्लीट द पिक्चर. So with that we come to the end of this video, dear children. Hope you like the video. God bless you.